Hello students, my name is Rajkumar and welcome to the Aakashdeep online classes. So in last lecture we were discussing about algebra of complex number. So we saw how can we add two complex number, subtract, multiply and divide any two given complex numbers. And we saw some important terms like additive identity, additive inverse, multiplicative identity, multiplicative inverse. All these things we have seen in last lecture. So in this lecture we are starting with properties of algebra of complex number. Actually in case of real numbers also we have the properties like commutative property and distributive property, associative property. So same properties we are going to discuss here in case of complex number. Okay. तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लेट्स से इफ यू हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 बिलोंग्स टू R, z1 z2 बिलोंग्स टू C, z1 z2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, then if I add both complex number then resultant will be complex number. If I subtract two complex number then result will again be complex number. If I multiply two complex number then my resultant will be a complex number. If I divide two complex number z1 by z2 then my resultant will be complex number. तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, if you take any two complex number, if you add, then if our resultant is a complex number then we say addition of two complex number satisfies the closure property. Similarly here subtraction of two complex numbers satisfies the closure property. On the same line multiplication of two complex numbers satisfies the closure property. But here in division we have a problem here. If z2 equals to 0, then our division won't be defined. That's why division of two complex number doesn't satisfy the closure property. Here if we exclude z2 equal to 0 then our division will also satisfy the closure property. तो यहाँ पे अपन लाइन लिख सकते हैं, the addition, subtraction and multiplication, the division, subtraction and multiplication of complex numbers, the addition, subtraction and multiplication of complex number satisfies the closure property, satisfies the closure property. ठीक है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उनको ऐड करो तो फाइनल रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सब्ट्रैक्ट किया मल्टीप्लाई किया तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. बट यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि डिवीजन जो है z1 बाई z2, ये क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, वोंट सेटिस्फाई द कॉम्प्लेक्स क्लोजर प्रॉपर्टी इफ z2 इक्वल्स टू 0. तो मेरे पास जैसे मान लिया कि z1 z2 बिलोंग्स टू C है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इफ z2 नॉट इक्वल्स टू 0. अगर डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन डिवीजन विल आल्सो सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अगर z2 0 हो गया तो माई एक्सप्रेशन वोंट बी डिफाइंड. दैट्स व्हाई वी से डिवीजन इन जनरल डजंट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ वी एक्सक्लूड z2 इक्वल्स टू 0 देन देयर इज नो प्रॉब्लम एंड वी कैन डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इन दिस केस डिवीजन विल आल्सो सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो इन दिस प्रॉपर्टी, तो लेट्स से मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z1 z2 बिलोंग्स टू C. ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि उल्टा सीधा एक समान, मतलब इट डजंट मैटर इन विच ऑर्डर यू आर एडिंग और मल्टीप्लाइंग एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर मैं z1 प्लस z2 करूँ या फिर z2 प्लस z1 करूँ, बोथ विल गिव द सेम रिजल्ट. ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है.
On the same line, the product of two complex number will also satisfy the commutative property कि अगर Z2 को पहले लिखा या फिर Z1 को पहले लिखा doesn't make any difference, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है. But here we have a problem. If I taking subtraction and division, subtraction में Z1 minus Z2 won't be equal to Z2 minus Z1, ठीक है. So that's why we say subtraction of two complex number doesn't satisfy the commutative property. And similarly in case of division, Z1 by Z2 won't be equal to Z2 by Z1, ठीक है. तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं the addition and multiplication of complex number, addition and multiplication of complex number satisfies the commutative property. The addition and multiplication of complex number satisfies the commutative property, but subtraction and division does not satisfy the commutative property, ठीक है. तो ये अपना हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं एंड डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है. इसके बाद में आता अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 3 इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? लेट्स से मेरे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2, Z3 बिलोंग्स टू C, ठीक है. तो मैंने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया. तो मैंने किस ऑर्डर में ऐड किया? यहाँ पे तो मैंने क्या किया, Z1 और Z2 को ऐड कर दिया और फिर उसके अंदर फाइनल में Z3 ऐड किया. या फिर मैंने क्या किया, पहले Z2 और Z3 को ऐड किया और फिर जो रिजल्ट आया उसको Z1 में ऐड किया. तो दिस विल ऑलवेज होल्ड, मतलब कि इफ़ यू आर एडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन एनी ऑर्डर रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है. सिमिलरली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मेरे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3. मैंने पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसको फाइनली Z3 से मल्टीप्लाई किया. या तो ऐसे कर लिया या फिर मैंने क्या किया, Z1 को सेपरेट कर दिया, पहले Z2 एंड Z3 को मल्टीप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आया उसको Z1 से मल्टीप्लाई किया, तो वो दोनों इक्वल आएगा. बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इट्स नॉट द सेम. पहले मैंने क्या किया, मान लिया कि Z1 में से Z2 सब्ट्रैक्ट किया, जो भी आंसर आया उसको Z3 में सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो ये दिस वॉन्ट बी इक्वल टू Z1 माइनस Z2 माइनस Z3. तो यहाँ से पहले दिख रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3. तो यहाँ पे Z1 माइनस Z2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दैट्स वाई subtraction of complex number doesn't satisfy the associative property. Similarly in case of division, मान लिया कि मेरे पास Z1 डिवाइडेड बाई Z2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई Z3 है. तो दिस वॉन्ट बी इक्वल टू Z1 डिवाइडेड बाई Z2 बाई Z3, ठीक है. तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जैसा सीन हो जाएगा. यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन satisfies which property? Associative property. Addition and multiplication satisfy associative property, ठीक है. And next is subtraction and division does not satisfy, subtraction and division does not satisfy associative property, ठीक है. ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3. इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है. प्रॉपर्टी नंबर 4 इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ.
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, मान लिया मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है Z1, Z2 एंड Z3, देयर आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेज इफ आई हैव Z1 ब्रैकेट Z2 प्लस Z3, सो आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट ओवर एडिशन साइन, मतलब कि अपन Z1 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि पहले इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रखा है, Z2 को Z3 से ऐड किया, जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको Z1 से मल्टीप्लाई किया, और इन अदर वर्ड्स वी कैन डू पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया प्लस Z1 को फिर Z3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे अगर ये प्लस के लिए होल्ड हो रहा है तो ये चीज़ माइनस के लिए भी होल्ड हो जाएगी, मतलब यहाँ पे इफ़ हियर आई हैव Z2 माइनस Z3, तो ये क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z2 माइनस Z1 इंटू Z3। सिमिलरली अगर मेरे पास पहले एडिशन दे रखा है और फिर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, दिस विल ऑल्सो होल्ड। तो अपन ने क्या किया, Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई किया प्लस Z2 को फिर Z3 से मल्टीप्लाई किया। सो हियर यहाँ पे ये माइनस के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 विल इक्वल टू Z1 Z3 माइनस Z2 इंटू Z3। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब Z1 को पहले Z2 से मल्टीप्लाई किया प्लस Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ से अपना दोनों से अपना आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस टाइप से रियल नंबर में आइडेंटिटीज होती है A² प्लस B² वगैरह, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटीज देखते हैं। पहली चीज़ तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी, इफ़ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू 0, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इधर Z1 इक्वल्स टू 0 और Z2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो कम से कम एक तो 0 होना ही पड़ेगा, दोनों भी 0 हो सकते हैं बट एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, बट यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है, इफ़ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका स्क्वायर का सम 0 है, दिस डजेंट इम्प्लाई दैट Z1 इक्वल्स टू 0 एंड Z2 इक्वल्स टू 0। और इन केस ऑफ रियल नंबर भी से, अगर दो नंबर का स्क्वायर का सम 0 है तो दोनों रियल नंबर 0 होने चाहिए। कैसे, मैं ऐसे बोलूँ कि इफ़ AB बिलोंग्स टू R एंड A² प्लस B² इक्वल्स टू 0, देन दिस प्रॉपर्टी मस्ट होल्ड A इक्वल्स टू B इक्वल टू 0। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ऐसा होना पॉसिबल जरूरी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब Z1 और Z2 0 हो गए तब भी हो जाएगा, बट इफ द Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इट डजेंट मीन दैट Z1 इक्वल्स टू 0 एंड Z2 इक्वल्स टू 0। इसका और कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे इफ आई टेक लेट Z1 इक्वल्स टू आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू 1, तो मैंने स्क्वायर किया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, तो Z1 स्क्वायर कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे Z1 और Z2 दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, फिर भी दोनों का सम ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है, दोनों का स्क्वायर करके सम ऐड कर, दोनों का स्क्वायर करके सम करने पे आंसर कितना आ रहा है, 0। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 सेज Z1 प्लस माइनस Z2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे दो है, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर टाइप की चीज़ है, तो इसको कैसे लिखते हैं, Z1 स्क्वायर प्लस माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। जिस टाइप से रियल नंबर के केस में होता है उसी टाइप से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर टाइप चीज़, तो A माइनस B और A प्लस B, एक ये प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हो जाएगी अपना, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, तो ये इस टाइप की होगी, A प्लस B का होल क्यूब। तो A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3
ए बी और फिर क्या होता है ए प्लस बी। अब ये इसी टाइप से ये a माइनस बी के लिए बन जाएगा z1 माइनस z2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर वाली आइडेंटिटी में z2 को माइनस z2 से रिप्लेस कर दिया। सो दिस विल बी z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3z1 z2 ब्रैकेट z1 माइनस z2, मतलब जहाँ जहाँ प्लस साइन आ रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5। लेट्स मूव टू द आइडेंटिटी नंबर 6। आइडेंटिटी नंबर 6 इज z1 क्यूब प्लस z2 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मेरे को z1 माइनस z2 क्यूब चाहिए, ठीक है, जेड ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ये z1 माइनस z2 इंटू z1 स्क्वायर प्लस z1 z2 प्लस z2 का स्क्वायर। एक्चुअली दीज आइडेंटिटीज यू हैव स्टडीड इन केस ऑफ रियल नंबर इन 9th क्लास, सो आई एम जस्ट क्विकली रनिंग थ्रू इट फॉर कम्प्लिकेशन सेक। ठीक है, इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 7 आता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 इज z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी और प्लस ए सी। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 होगी। नेक्स्ट मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या होता है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3। यहाँ पे क्या हो जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर माइनस z1 z2 माइनस z2 z3 माइनस z3 z1। ठीक है, और इसके बाद में इसमें एक प्रॉपर्टीज और होती है। अगर इसमें स्पेशल केस ले लें, इफ़ z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू 0, अगर ये सम 0 हो गया तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 0। राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए। दैट विल बी z1 क्यूब इफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू 0 देन z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब माइनस 3z1 z2 इंटू z3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन, z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 का क्यूब इक्वल टू 3z1 z2 z3। ठीक है, तो ये अपनी आइडेंटिटीज हो गई। आइडेंटिटीज का हेल्प अपन लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे को बोले कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z स्क्वायर निकालो, तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को वापस उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई मेरे को ऐसे बोले z1 दे दिया, z2 दे दिया, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर निकालो। सो वी कैन मेक यूज ऑफ दीज आइडेंटिटीज विच वी हैव जस्ट लर्नड। ठीक है, तो कितनी आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज है अपने पास, एक तो z1 इंटू z2 इक्वल्स टू 0, फिर z1 होल स्क्वायर प्लस z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और ये सारी प्रॉपर्टीज किस टाइप की है, जो आइडेंटिटीज रियल नंबर में लगती है। ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज ऑन द सेम लाइन वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आइडेंटिटीज लग जाएगी। ठीक है, तो आई होप दैट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल सोल्व द NCERT examples, NCERT book example and exercise 5.1. So after that we'll move to the geometrical representation of a complex number. How can we represent a complex number in argand plane? What is the meaning, geometrical interpretation of a modulus? How can you find the argument, and what is the range of the argument? All these things we'll see in the next lecture. So I hope this much is enough. So see you soon.